Rajasthan, an endless caravan. A caravan that highlights dreamlike images of crimson skies, golden sands, and an aura of romance that unveils many amazing stories. Every ripple in the sand dunes echoes the fascinating aspects of life with the shifting footprints of the camels, the best friend of the desert dwellers. Intriguingly, the camel is not just the means of transport, but is also used for cultivation, post-distribution, and above all, guards our borders as part of the border security force. The way they are colorfully decorated from head to foot, they seem to be the proud possession of their owners. Traditionally, in the Thar Desert, the camel keepers are wanderers, better known as the Raikas. Even in the changing times, today, Raikas continue to practice their age-old profession, maintaining their characteristic lifestyle. While the menfolk look after their herds, the women express themselves with colorful threads and weave exquisite ornaments. Together, they add color to the barren desert landscape. The Raikas converge at Pushkar annually for the famous camel fair to trade in their herd. The fair not only draws hundreds of local villagers, but also a large number of foreign tourists who come to get the feel of the land. During the fair, this quaint township appears to be like a halting point of a caravan of the medieval ages. No wonder cameras click endlessly to capture each moment. In the rambling crowd, suddenly a veiled woman and a turbaned man make a distinctive appearance, intriguing the people present there. An amazing story unveils. This is the story of two foreigners. One came from Italy and the other from Sweden. The Italian was just a young boy of 19 who sought the depths of life, unlike youngsters of his age. An art student with a philosophical bent of mind chose India as the destination of his quest. The blue-eyed beauty from Sweden arrived first in the Himalayan region and was drawn by the colors of the Indian mystic arriving at Pushkar. Almost reliving one of the legendary romantic tales of Rajasthan, the two met at Pushkar during the fair, and life, for them, took a U-turn at Pushkar, as together they joined the timeless caravan of the Raikas. Adopting the lifestyle in an incredible way, they dress like the locals, speak fluent Hindi, and follow the daily chores, a routine unimaginable for many Indians. The first time they ever revealed their story, without any inhibitions, was to us. They talked about the age-old traditions being completely lost in their countries, and now slowly fading out from India as well. They adopted the folk lifestyle with the idea of preserving the fascinating cultural traditions and also protecting the environment. मैं
पुष्कर मेला में आता करीब करीब 8 साल से, और रायका के साथ रहता हूँ 5 साल से। जितना गोरा लोग है, जितना है मवेशी वाले थे, आर्या लोग है ना, फिर मागरा में कोई वो फलाना जगह गया, कोई दूसरा जगह गया, इसलिए वो शुरुआत से वो मैं जुड़ा हुआ वो पशुपालन के साथ, क्योंकि वो सिर्फ आपकी संस्कृति की बात नहीं, हमारी संस्कृति भी है। मैं यूनानी जाति हूँ, सिकंदर मान वाला है। जो हमारा ख़त्म हो गया मेरा देश में, इधर ख़त्म हो रहा है, इसलिए इधर वो जो ख़त्म होने वाला, हमारा भी टुकड़ा है ख़त्म होने वाला है। तो पहले बार जो मैं रायका समाज से मिला है, पुष्कर मेला में हुई, वो समय में वो गुजर के साथ रहता था। फिर गुजर और रायका वो प्राण मिलता काफ़ी, इसलिए वो तो कोई रायका मेरे को पूछा आप गुजर है या रायका है, मैं उसको बोला मैं वो गोरा लोग है, कोई गुजर नहीं है, कोई रायका नहीं। लेकिन ऐसा वो बात शुरू हुआ, और रायका लोग बहुत मतलब अलग रहता है, उसका संपर्क करने का आसान नहीं है। लेकिन वो जो एक रायका मेरे को वो मजाक से बोला, वो तो चलो हमारे साथ जाना, वो जो पीछे जाएंगे वो तोला के साथ, मेरा गांव साथ आना। फिर मैं बोला हाँ मैं आऊँगा। फिर मैं वो 12 दिन की रास्ता किया है उनके साथ, उनको विश्वास हो गया। फिर अभी 5 साल हो गया वो उनके साथ रहता है। मेरा लुगाई भी उसका संस्कृति, उसका चीज़ें वो सीखता है। फिर उनको देखा है वो ये ज्योति और नाशी हमारे लोग हैं, प्रेम भाव हो गया। A glance at their attire will reveal that even the villagers don't dress as authentically as the hero of the story, Jyoti, alias Enzo Di Martino, and the beautiful heroine, Nashi, or Elvin Bomgren. दिन में तो नाना कपड़ा धोना, लेकिन सबसे ज़्यादा ये मैं कोशिश करता है समय मिलना, ये कसीदा करना और सीखना जो है गांव के लोग से, पुराना रिवाज कि कैसा था, घरान कैसा था, ऐसा मैं भी कर सकती हूँ। एक बार एक दौर सीखना चाहती थी। ये एक रस्सी है, स्पेशल तरीके से गूंथना पड़ता है। ये काम आदमी लोग करते थे, और मैं पूछा ये बुद्ध आदमी को आप कर सकता है ये काम, वो नहीं मैं भूल गया। वो कोई बोला नहीं, वो आदमी करता था लेकिन अभी ख़त्म हो गया। फिर दूसरा जगह गया, दूसरा गांव में वो पूछा, अब वो आदमी करता था, वो ज्ञान था, लेकिन अभी गुजर गया। कोई नहीं था मेरे को सिखाने का। फिर 3 साल लगी, फिर एक आदमी मिला, बुद्ध आदमी था। वो 50 साल से नहीं बनाता था, लेकिन उनको ज्ञान था। फिर मैं को सिखा दिया। हाँ, कोई लोग हंस रहा है, अरे रे विदेशी क्या पहन लिया, वो समझता नहीं, वो सिर्फ कपड़े थोड़ा पहन लिया है वो। फिर वो जो मैं बोलता रहे ऐसा कैसा बोलता, पर उनको आश्चर्य हो जाता, अरे हिंदी भी जानता है। फिर वो थोड़ा बहुत बात करता है, फिर वो समझाता है, फिर वो अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ऐसा है, हमारा देश में हमारा भी प्राण था, बहुत बढ़िया प्राण था, कसीदा की काम सब था। अभी ख़त्म हो गया बहुत पहले। अगर कोई किसी को पूछता है पहले ज़माने में कैसा था, कोई जवाब दे सकता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान भी ख़त्म हो गया।
इसलिए जो मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में और राजस्थान में, इधर का रिवाज जिंदा है लेकिन जल्दी ख़त्म हो रहा है। मैं सीखता हूँ ज्ञान रखने के लिए, क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं आज ख़त्म हो जाएगा, ज्ञान भी ख़त्म हो जाएगा। जो जवान लड़की मेरे को पूछता है, ये आप इतना इंटरेस्ट क्यों लगाता है इस चीज़ में, पुराना चीज़ है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर ये चीज़ बोलता है उनको कि अगर आपके बच्चे होता है, आपको पूछेगा हमारा रिवाज कैसा था, हमारा फरहान जो था कैसा था, वो जवाब दे सकता ही नहीं। जो मैं देखता है वो जंगल ख़त्म हो रहा है, दुनिया में ख़त्म हो रहा है, ऐसी बात हो रही है वो हिंदुस्तान में ख़त्म हो रहा है, दूसरी जगह नहीं, लेकिन वो चिंता नहीं करता लोग। और लोग दुनिया वो अपने आप सोचता है वो क्या कर सकता है, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, वो खुद का आवाज़ वो बाहर नहीं आता है। जितना बढ़िया चीज़ है वो ख़त्म होगा फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए हमारा विचार है भी एक संस्था बनाना, और जैसा गांव की लोग वो उसका कसीदा वो करता है, वो भूल जाता नहीं कैसा करना है, फिर वो आगे के लिए भी रहेगा, कोई म्यूज़ियम के लिए भी हो सकता है। मतलब हमारा भी पैसा नहीं है खुद का, वो कोशिश करता वो कोई बड़ा कंपनी की स्पॉन्सर होगा, वो ऐसा है वो, फिर इसलिए हम लोग ज़्यादा भी पुष्कर में आते हैं, क्योंकि वो अगर रायका के साथ है गांव में, उधर कौन आएगा। Having pursued a nomadic lifestyle, they rejoice in leading travelers to discover the rural fabric, making India an incredible experience. As they traverse the path chosen by them, one wonders, whose heritage is it anyway?